Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Sri Chandra's distance learning program. Dear students, in our last class, we were dealing with the topic Arabic literature during Umayyad period. Al-Adabul Arabi fi Asril Umawi. Al-Adabul Arabi fil Asril Umawi. Arabic literature during Umayyad period. We had studied this topic in our previous class. Today we will continue this topic. Let's take a short review of the previous class. Umayyad period, also known as Al-Asr al-Umawi. It is spanned some 89 years or 90 years. From 661 Christian era to 750 Christian era. This was the period where the Umayyad caliphs ruled the Islamic state after Rashidun Khilafat. After the rightly guided caliphs, they ruled the Islamic state. Many political groups come into existence in Umayyad Khilafah, like Alis, Zubairis, Kharjis, Murjis, and so on. But on the one hand, there were many political disturbance during the Umayyad Khilafah, but on the other hand, it is the period of development of prose and poetry literature. The Arabic literature has been developed a lot during Umayyad period, especially An-Nahw, Arabic syntax, morphology, sarf, and hadith, ilmul kalam, scholastic theology. The society became more urbanized, more developed during the Umayyad Khilafah. Okay, they gave a new look to the sermon, to the oratory. Oratory system has took place. There were many orators who used to deliver a lecture to evoke the people, to provoke the people towards battle. Among them, the most famous prominent orators of the period include Hajjaj bin Yusuf and Ziyad ibn Abi, Abu Hamza al-Kharji. These are the orators of Umayyad period. The prose style of writing also developed during the Umayyad period. The pivot in this regard is Abdul Hamid al-Khatib al-Baghdadi. He has introduced a new genre to the prose style. Earlier, the prose style was not so developed before Abdul Hamid al-Baghdadi. He led the foundation of artistic prose during the era of Umayyads. This was our previous topic. In our last class, we studied in detail about this. Now we will proceed towards poetry during the Umayyad period. The prose style we come across. Now we will proceeding towards the poetry during Umayyad period. How the poetry has developed during Umayyad period.
The Umayyad rulers were patron of knowledge. They support knowledge. They give prizes for the knowledgeable people. They encourage the knowledge. During their rule, Arabic literature and language has developed highly. Muawiyah bin Abi Sufyan was the first ruler of Umayyad dynasty. Muawiyah bin Abu Sufyan रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दो जो है इन्हों जो है सब में पहले खलीफा थे उमवी दौर के. ही वॉज फॉन्ड ऑफ नॉलेज, उनको जो है इल्म से बड़ा बड़ा शगफ था. आफ्टर इस्टेब्लिशिंग हीज पावर एट डमस्कस, दमिश्क में जब आप अपने पाए तख्त को संभाला, ही इंक्लाइन टूवर्ड्स रिलीजियस एज वेल एज अदर बुक्स, तो आपने अपनी तवज्जो जो है मजहबी किताबों की तरफ, न सिर्फ मजहबी किताबों की तरफ बल्कि दूसरी किताबों की तरफ भी मबजूल फरमाई. द उमय्यद पीरियड was the starting point for many new forms of poetry among them are. उमवी दौर जो है नए नए शेर शायरी के अंदाज को परवान चढ़ाया, जिसमें ये भी शामिल है गज़ल पोएट्री. गज़ल पोएट्री इज़ नथिंग बट लव पोएट्री, मोहब्बत की जो है ना शायरी. पॉलिटिकल पोएट्री, सियासी जो है शायरी. ऑरेटरी एंड पायस पोएट्री, खिताबत और जो है ज़ुहद वरा की पोएट्री शायरी. द उमय्यद पीरियड वाज अ पीरियड विथ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व. उमवी दौर में बहुत सारे सियासी सरगर्मियाँ पेश आते रहे. देयर वर सेवरल पोएट्स सपोर्टिंग वेरियस पार्टीज, तो शायरा भी बहुत सारे थे, हर कोई अपने अपने मिजाज के हिसाब से एक एक पार्टी को जो है सपोर्ट करता था. They had sprung up such as खारजीस एंड जुबेरीस. ये लोग आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में बहुत फैल गए, जैसे खारजी और जुबेरी. खारजी और जुबेरी ये दो जो है देखते ही देखते जो है बहुत ज़्यादा फैल गए. पोएट्री, पोएट्स ऑफ पॉलिटिकल पोएट्री, शायरा, ये सियासी शायरी के शायर कौन थे, तो यहाँ पर जो है द थ्री मेन पॉलिटिकल पोएट्स हु कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द पोएट्री आर अल-अख्तल, जरीर एंड फरजदक. दीज थ्री आर द मेन पॉलिटिकल पोएट्स ऑफ उमय्यद पीरियड. Apart from the importance of their political poetry, there was also a phenomenon that took place which is as termed as naqaid, or the exchange of political invectives. उमवी दौर में तीन शोरा बड़े ही सियासी शोरा कहलाते थे, बड़े मशहूर हुए, जिनमें अख्तल, फरजदक और जरीर है. ये लोग जो है सियासत पे शायरी कहते थे, और उसमें सियासत पे शायरी करने में एक नए फ़न का ईजाद हो गया जिसको नक़ायद कहते हैं, क्रिटिसिज्म, तंज़ करना. अब एक दूसरे पे तंज़ और मिज़ा तंज़ करने में उन पर तंज़ करे तो उन्होंने पलटा के इन पर तंज़ करते थे, सब पोएट्री में होता था. तो ये शायरा जो है अपने अपने पार्टी को सपोर्ट करते थे, उसके लिए जो है शेर लिखा करते थे. विच टुक प्लेस अमॉन्ग द aforementioned three, रेंजिंग फ्रॉम अटैक्स ऑन द ट्राइबल एनिमीज टू पर्सनल अटैक्स. ये लोग नक़द तनक़ीद ऐसे करते थे, उनके जो है कबीले पे तनक़ीद करते थे, उनके आर्मी पे तनक़ीद करते थे, और यहाँ तक के पर्सनल अटैक्स भी, शख्सी तौर पर भी तनक़ीद किया करते थे. मुआविया ओवरथ्रोइंग ऑफ द कैलिफ अली सेट द स्टेज फॉर द इंक्रीज पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन. मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपना पाए तक दमिश्क में संभाले तो जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, जिसके नतीजे में मैनी न्यू पॉलिटिकल पार्टीज़ केम अप, बहुत सारी सियासी जमातें उभरी. ईच सपोर्टिंग अ डिफरेंट साइड, हर कोई अपने मिजाज के हिसाब से दूसरे को सपोर्ट करता था.
Poets had the opportunity to align themselves with any party. और जो शायरा थे वो अपने आप को किसी एक पार्टी से मंसूब कर लेते जिनसे उनका ज़ाती मफाद जुड़े हुआ रहता था. टू ग्रेट पर्सनल बेनिफिट, उनका ज़ाती मफाद जुड़े हुआ रहता था. ज़्यादा से ज़्यादा कौन से पार्टी में रहे तो फ़ायदा होता वो देखकर जो है वो लोग जुड़ जाते थे. दिस प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल पोएट्री टू थ्राइव पोएट्री इन द उमैयद पीरियड. ये इसलिए ये जो है प्लेटफॉर्म, ये सतह उनको जो है ना आसान हो गई पोएट्री की तरक्की में. शायरी तरक्की करते गई, ये उनको प्लेटफॉर्म मिला. एक दूसरे पे नक़्द करना है, तनकीद करना है, शेर लिखना है, उस पर पैसे भी मिल रहे हैं, इनाम भी मिल रहा. तो इस तरीके से ज़्यादा शायरी लिखे जाने लगी. हर कोई एक एक पार्टी के फेवर में शायरी लिखता तो कोई ख़िलाफ़ में लिखता. शायरी लिखते गए और शायरी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई उमैयद पीरियड में. फीचर्स ऑफ उमैयद पोएट्री. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ Umayyad Khilafat, the pre-Islamic tradition of Arabic poetry remained largely unchanged in terms of form, although as one might expect, the Islamic faith became prominent. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो इस्लामी शायरी थी वो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया. इस्लामी शायरी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया. लार्जली अनचेंज इन द टर्म्स ऑफ फॉर्म. उसके बनावट में, उसकी नशो नुमा में और उसके जो है ना स्टाइल पर कोई असर नहीं गिरा. ऑल्दो एज वन माइट एक्सपेक्ट द इस्लामिक फेथ बिकेम प्रोमिनेंट. अकीदा रासिख था, हर एक के दिलों में ईमान पुख्ता था, बैठे हुआ था. ह्यूमर वॉज वन नोटेबल इन्वोकेशन. मिजाह करना, मिजाह यानी कि मजाक नहीं होता है, मजाक अलग चीज़ है, मिजाह अलग चीज़ है. मजाक में झूठ का इस्तेमाल होता है, किसी की दिल आज़ारी होती है, और मिजाह में झूठ का इस्तेमाल नहीं होता और सामने वाले के दिल को खुश करना मतलूब होता है मिजाह में. समझे? मजाक से भी खुश कर सकते हैं लेकिन उसमें झूठ का एहतमाल है, इसलिए मजाक को जो है सराहा नहीं गया बल्कि मिजाह को सराहा गया है. ह्यूमर वॉज वन नोटेबल इन्वोकेशन. मिजाह करना एक जो है चीज़ थी इस्लामिक फेथ की. विथ इट बिकमिंग ऑलमोस्ट अ होल न्यू कैटेगरी ऑफ पोएम. मिजाहिया शायरी की एक नई जो है जिन्स पैदा हो गई. द थीम्स ऑल्सो मूव्ड फ्रॉम डायरेक्ट लाइफ टू डेजर्ट लाइफ टू सिटी लाइफ. और ये असरात जो है, जो बदवी लोग जो गांव में रहा करते थे वो लोग शहर में रहने लगे, तो उसमें भी शायरी में भी थोड़ा फ़र्क आने लगा. रिफ्लेक्टिंग द चेंज ऑफ स्टाइल ऑफ लिविंग कॉमन एट द टाइम. और इस तरीके से जो है वो लोग अपने रहन सहन के हिसाब से जैसे जैसे उनके अंदर तब्दीलियाँ आती गई वैसा वैसा वो असर उनकी शायरी पे भी नज़र आते रहा. The traditions also split very roughly into two poets of the East and the West. और ये जो है ये लोग जो है दो ग्रुप्स में, दो हिस्सों में तकसीम हो गए. एक जो है मशरिकी और एक मगरिबी. मशरिकी शोरा और मगरिबी शोरा के नाम से मशहूर हो गए ईस्ट और वेस्ट जोन में. ईच हैविंग इट्स ओन थीम्स. और हर कोई अपनी अपनी शायरी के अलग असर रखते थे, अपनी अपनी शायरी के अलग फीचर्स और फॉर्म्स रखते थे. द पोएट्स लिविंग इन द वेस्ट नियर मक्का टेंडेड टू बी इन जनरल सपोर्टिव ऑफ द रीजन. जो लोग मक्के में रहते थे वो लोग हुकूमत का सपोर्ट करने वाले थे, ज़्यादातर हुकूमत को सपोर्ट करते थे. जो हुकूमत अब प्रेजेंट है उसको सपोर्ट करते थे. whilst the more disparate tribes in the area now known as Iraq tended to oppose it. जबकि बहुत सारे कबीले ऐसे थे जो इराक़ में बसा करते थे, इस इराक़ में रहते थे, वो लोग जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते थे.
एंड रोड शार्पली क्रिटिकल लिरिक्स, और वो लोग जो है नक़्द लिखते थे और तनकीद करते थे, शायरी लिख के इनके ऊपर जो है तनकीद करते थे। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वेस्टर्न पोएट इज़ उमर इब्न अबी रबिया, और ये बेहतरीन शायर, मगरिब के बेहतरीन शायर का नाम जो है उमर बिन अबी रबिया है, जो 644 हिजरी में पैदा हुए, 644 क्रिश्चियन एरा में पैदा हुए, और हिजरी के हिसाब से देखें तो 23 हिजरी आता है, 23 हिजरी से 93 हिजरी, 23 आफ्टर हिजरा टू 93 आफ्टर हिजरा आपकी लाइफ स्पैन ऑफ लाइफ टाइम थी। एंड वॉज मक्काज मोस्ट पावरफुल मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट, मक्के के बहुत बड़े सेलिब बने हुए थे, बहुत बड़े शायर कहलाते थे। ही वॉज बॉर्न टू अ रिच फादर एंड वॉज पार्ट ऑफ अ पावरफुल ट्राइब, एक बड़े ही अमीर ख़ानदान में आपकी जो है ना पैदाइश हुई, और आप जो है बहुत ही क्या है ताकतवर कबीले से आपका ताल्लुक़ था। ही रिमेन्ड क्लोज टू पावर थ्रू आउट हीज़ लाइफ, ही रिमेन क्लोज टू पावर, आप करीब जो है हुकूमत आप ही के हाथ में थी जब तक आपके जो है ना आपकी ज़िंदगी बाकी रही, पावर आपके साथ था, यानी कि ट्राइब के जो है ना सरदारी आपके साथ थी। इवन इफ़ ही नेवर एंटरटेन पब्लिक ऑफिस हिमसेल्फ, यहाँ लेकिन आप ख़ास तौर से इसके लिए कोई कोशिश नहीं करे, लेकिन उसके बावजूद आपके पास जो है पावर था। उमर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमरिस्ट ऑफ हिज डे, और आप बहुत ही अच्छा मिजाह किया करते थे, आपके ज़माने के अच्छी शख्सियत थी। दिस एग्जाम्पल हाउएवर इज़ अ लिटिल मोर रोमांटिक, ये एक उनकी शायरी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। वर्ल्ड्स अपार्ट आवर डिविलिंग्स लाई, दुनिया जहाँ हमको एक तरफ छोड़ दी है, व्हेन ऑन एडेंस डिस्टेंट शोर आई स्टैंड, जबकि मैं जो है एक तरफ खड़े हुआ हूँ और मेरी महबूबा जो है दूसरी तरफ मक्के में खड़ी हुई है। वाइल मक्का होल्ड्स हर एंड नथिंग रिमेन्स टू लिंक अस, कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जो दोनों को मिला सके, बट सैडनेस ऑन मेमोरीज विंग, कि सिर्फ हमारे जहनों में एक जो है गम की बौछार है। हैड शी सीन द राइडर स्टेट्स एट द गेट्स ऑफ रिटर्न, क्या उसने देखा, क्या वो देखी थी जो लोग वापस आ रहे थे, उनके आंखों में आंसू। शी वुड हैव थॉट हिम स्ट्रेंज टू माई होम, और उसको ताज्जुब हुआ होगा देखकर। रिमेंबर द डे व्हेन पिलग्रिम्स बोथ एट मक्का वी सडनली मेट इन द क्राउड, उस दिन को याद करो हज के दिनों में जब हम एक दूसरे से भीड़ में मुलाकात किए थे और हम जो है कंफ्यूज थे। एंड शी टर्न टू सुरैया एंड सेड, और जो है सुरैया को तरफ पलट के वो कही कि वाइल ब्लैक फ्रॉम हर लैशेस द टेयर्स रैन डाउन, जबकि उसकी काली पलकों से आंसू झलक रहे थे। इन गॉड्स नेम आस्क हिम बट नो अप्रोच, खुदा के नाम से उससे पूछा गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो गायब ही जज्बे में खामोश रही। वॉट क्वेस्ट डिड यू होप इन यमन टू गेन, आप जो है क्या जुस्तजू कर रहे थे यमन में हासिल करने के लिए। इफ़ वर्ल्डली थिंग्स, क्या दुनिया के लिए आप जो है यमन में रुके हुए थे। वॉट स्ट्रेजिंग प्राइस वॉज योर्स फॉर रिनाउंसिंग द पिलग्रिमेज देन, तो फिर आपके लिए जो है ना कितनी बड़ी कीमत अदा करें आप, यहाँ पर हज करना छोड़ के वहाँ पर यमन में आप रुक गए, तो फिर ये दुनिया की चीज़ों के लिए हुआ, कितनी बड़ी जो है ना आपने ये कीमत अदा की। One can see in the above poem not only references to the traditional practices of Islam but a more prominent personal touch than in the pre-Islamic poems. यहाँ पर हम गौर कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है हज का ज़िक्र है, ये मजहबी जो है मकामात का ज़िक्र होने के बावजूद अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए, जैसे प्री इस्लामिक टाइम में जो है शायर अपनी महबूबा के लिए मोहब्बत का इजहार करता था, वैसा जो है यहाँ पर भी इजहार किया गया है बोल रहे हैं।
One can see this personal touch more prominently in another poem by the same poet. और ये उसके उमर बिन अबी रबिया की शायरी में बहुत ज़्यादा मिलता है बोल के बता रहे हैं. ओके ओके नाउ okay, we will stop here. If anybody want to ask something, you may raise your hand and ask us.